ऑलराइट, गुड मॉर्निंग पीपल। जेई का रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 शुरू होने जा रहा है। एंड जैसे ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करना है। लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन किया था। इन रिफ्लेक्शन वी लर्नड मिरर्स एंड प्लेन मिरर्स एंड कर्व्ड मिरर्स, और उनके साथ रिलेटेड काफी चीजें हमने करी। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कर्व्ड मिरर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज रिफ्रैक्शन पे फोकस करेंगे अपना ध्यान, एंड अगर पॉसिबल हो पाएगा तो वी विल ऑल्सो डू रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। देखते हैं आगे किस तरह चलता है। Now, whenever light, you already know the basic ideas. Whenever light goes from one transparent medium to another, it bends. So this bending is called refraction. In a very straight manner, this is medium 1, this is medium 2, and this is your normal, one of the most important lines. And this is the boundary separating the two media. This ray of light has come. This is the incident ray. And this incident ray is making an angle theta 1 with the normal. Okay. And अब ये यहां से सीधी जाने की बजाय बेंड हो रही है. This is your refracted ray, and this is making an angle of theta 2 with the normal. Snell gave us a law, two laws actually. The first law states that the incident ray, the refracted ray, and the normal, they all lie in the same plane. ये refracted ray बहुत ज्यादा appealing नहीं लग रही है, तो अपने नहीं बना देते अच्छी वाली. Okay, looks good. Okay. So all these three lie in the same plane. And secondly, and more importantly, which is also called Snell's law, it says that sine theta 1 by sine theta 2 is a big fat constant. इस कांस्टेंट को स्नेल ने n21 का नाम दिया. So sin theta 1 by sin theta 2 is n21, and n21 is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. हम इसके द्वारा आगे भी बढ़ सकते हैं और हम बढ़ेंगे. n21 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किस पे डिपेंड करता है, तो मैं आपको बता दूं. I'll write it in blue. We don't know rather, that n21 is equal to v1 by v2. This is a very important idea. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. So v1 is speed of light in medium 1, and v2 is the speed of light in medium 2. Also, we are now defining absolute refractive index. Absolute refractive index of any medium, n, it's a very important formula, n is c by v. C is the speed of light in vacuum or air, and v is the speed of light in that particular medium. So this is a very important formula for refractive index. So, and always remember, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी एयर की, सॉरी सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी एयर की, विच इज 1, एंड सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में. जैसे ही दूसरे मीडियम में जाता है स्पीड ऑफ लाइट कम होता जाता है, एंड एज अ रिजल्ट यहां से मुझे मिलता है v is c by n. So v1 is going to be c by n1, and v2 is going to be c by n2, which I'm going to put here, and as a result what am I going to get? n21, which is actually v1 by v2, comes out to be c by n1 over c by n2. c cut, n2 चढ़ जाएगा ऊपर, n2 by n1. This is a very very lovely equation. This 1, this 2, and this is 3, and as a result n21 becomes n2 by n1, and thus what does my modified form of Snell's law become? We had what? Sin theta 1 by sin theta 2, which is n21, is n2 by n1. This is also a very important thing to be remembered. n21 is n2 by n1, n31 would be n3 by n1, n12 would be n1 by n2, and so on and so forth. इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, and as a result you get n1 sin theta 1 is n2 sin theta 2. And this, ladies and gentlemen,
is more commonly known as Snell's law, but it is actually the modified form of Snell's law. The actual Snell's law is this: sin theta 1 by sin theta 2 is constant. So this is the idea behind Snell's law, and I have related refractive index with the angle of incidences and refraction, and so on and so forth. Now, when light goes from rarer to denser, it bends towards the normal. When it goes from denser to rarer, it bends away from the normal. And due to these bendings, many phenomena are generated. One of the most important ideas is when you are looking from one medium into another, then the object in that medium will always appear lifted up. Okay, so always remember, when you are looking from one medium into another, that object will always appear lifted up. So phenomenon number 1, which is called apparent depth. So for example, we had this very famous example: object in denser medium. We had the example of a fish, and we had our famous Dev Desai holding his ground. Yeah, Mama and Dev Desai. And he's looking at the fishy. It's a very fishy business. Why should he look at the fish? Only he and the fish know. Maybe some Purva Janam with the fish. So this is the real position of the fish, gentlemen. But the bending is happening like this. Will the image appear where the fish is? No. Because light can only travel straight. His eyes can only see straight. So, tuck, 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 tuck. And यहाँ से पीछे खींचा, tuck, 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 tuck. Wow. Look at where the fish is being visible. This is the apparent position of the fish. And he will think that the fish is here. The fish has appeared lifted up. I would suggest that this be called ho, which is the height of object, and this be called high, which is the height of the image. तो वो यहाँ टच करने जाएगा, इधर इधर पर फिश है ही नहीं, उसको कुछ टचिंग होगा ही नहीं, no touching, only seeing. Alright, so this is where the fish appears, and this is where the fish actually is. So you can see it is appearing lifted up. Acha, now we would like to find the relation between high and ho. Remember, Dev Desai is standing in the rarer medium. Is standing in air, so we call it n rarer, and fish is in denser medium because मछली जल की रानी है. All right, and जीवन उसका पानी है. So fish is in denser medium. Now, if you see here, by theory, by a derivation, we don't need to fall into the trap of derivations right now, because we are interested in the final idea. You can see object appears lifted up, and you can see high is less than ho. This is the most crucial idea, people. You need to understand. बहुत लोग इसको neglect कर देते हैं कि high हो क्या है, but the most important thing is, what is bigger, ho or high? Ho is bigger, high is smaller. So I will write it in blue. Always try to find out कौन बड़ा है कौन छोटा. Here high is less than ho, and as a result, high by ho will be what? Will it be n rarer by n denser, or will it be n denser by n rarer? कौन छोटा है? My goodness, n rarer by n denser, absolutely. There's a cocker. So क्योंकि high छोटा है, इसलिए छोटा refractive index ऊपर आया. Ho बड़ा है, बड़ा refractive index नीचे आया. So high by ho, this is how we remember. High by ho is n rarer by n denser. Before I go on to the next topic, I want to show you a very important idea, which is called shift. What is shift? Many a times they ask in the competitive exams, find the shift. So what is the shift? The amount by which the object has appeared risen. Object is originally here. It appears here. So this, gentlemen, this is the amount by which the object has appeared risen. So delta H is the shift, which is ho minus high. Can you see that? Can you relate that in the diagram? So delta H is ho minus high, and from this formula you have high here. High is ho, ये ho को यहाँ लेके गया. High is ho into nr by nd. So this is ho into ho. ये चकदे इंडिया में बहुत बोलते थे ho. All right, ho. So ho को लिया common.
So delta H is ho bracket 1 minus NR by ND. So shift के लिए भी एक फॉर्मूला हाजिर है आपके लिए. You can use it as and when you want it. And if you don't remember it, no issues here. You can always derive it couple of steps and you are there. और अगर आपको हाई मिल जाता है इस प्रोसेस से तो सीधा हो माइनस हाई करके यू आर ऑन योर वे. सो फॉर्मूला याद नहीं आता है, नो इश्यूज. बस ओरिजिनलिटी याद रखो, बेसिक याद रखो कि ये होता है. ओके, you know, if we are looking at now, suppose the fish is looking at Dev Desai. Will Dev Desai appear lifted up or will he appear pushed down? What do you say? Lifted up. Lifted up, my goodness. Dev Desai always appear lifted up. That's the fundamental characteristic and the fundamental right of Dev Desai to appear lifted up. So, if object is in, do you want me to draw a diagram of Dev Desai being appearing lifted up? No, it is okay, right? So, Dev Desai will not mind. If object is in rarer medium, means now the fish is looking at the object will appear lifted up. So in that particular case, let me draw the diagram here for safety sake. I can take this off now. All right. Yes. Thank you, buddy. So this is अच्छा, ये भी तो उड़ा देंगे because object is not now in denser. This is the fishy. They share a special bond, a bond so strong it's lifelong. And you know when light goes from denser to rarer, कैसे bind होता है महाराज? Away from the normal. So मैं पूरा देव देसाई तो बना नहीं पाऊंगा. देव देसाई की गुलाबी आंखें हैं, ये उसका गुलाबी आंखों का रियल पोजीशन है. बट फिश को कहां नजर आएंगी आंखें? फिश को आंखों की गुस्ताखियां माफ हो और फिश को नजर आएंगी तेरी आंखें यहां पे. सो दिस इज योर अपेरेंट पोजीशन पीपल, नॉट योर आंखों का अपेरेंट पोजीशन. हमने आंखों की गुस्ताखियां सुनी थी, आंखों की शरारतें सुनी थी, आंखों का अपेरेंट पोजीशन नहीं सुना था. तो ये आपको मैंने आज दिखा दिया आंखों का अपेरेंट पोजीशन. एंड एज ए रिजल्ट चलो मार्किंग वार्किंग कर लेते हैं. ये है हो जो रियल पोजीशन का डिस्टेंस होता है. एंड दिस इज हाई. फिश इज इन डेंसर जेंटलमैन, सो इज एनडी. एंड द आई इज इन रेयरर, तो दिस इज एनआर. भाई 100 बात की एक बात क्लियर है कि ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज अपीयर लिफ्टेड अप, नो डाउट. कहीं भी कोई भी मीडियम में देखो, एक से दूसरे में गया लिफ्टेड अप होना ही है. अच्छा, कौन बड़ा है यहां पे? हाई. हाई हाई इज ग्रेटर देन हो. एंड एज ए रिजल्ट अगर हाई ग्रेटर देन हो है तो ऊपर क्या आना चाहिए? रेयरर या डेंसर? डेंसर. डेंसर. आई एम अ डिस्को डेंसर. High is greater than ho, so is n denser by n rarer. Okay, तो मस्त एक ही टाइप का फॉर्मूला, यूज अलग अलग. सो दिस वाज द आइडिया ऑफ अपेरेंट डेप्थ. तो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ ऐसा कराना चाहता हूं जिसमें वापस स्पीड का फंडा आता है. ओके, सो लेट मी डू दिस वन सम. एग्जांपल के लिए मैं वर्कशीट का एक सम उठा रहा हूं. आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ. ओके, अपेरेंट डेप्थ का ही एक सम है. मैं वर्कशीट में से, आज वर्कशीट्स में से भी कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा मैं, विच हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वगैरह में से हैं. एंड सम सम्स विच आर मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अ वेरी लवली सम दिस. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया कि ये कहना क्या चाहता है. ओके, इससे पहले नंबर कौन सा है जी? आई थिंक इट इज नंबर 3. वर्कशीट का नंबर 3 है. आर यू लुकिंग? वर्कशीट का नंबर 3 है. ओके, आई एम विथ यू. वर्कशीट का नंबर 3. अगर आपके पास वर्कशीट्स है तो आप खोल सकते हैं. एंड इफ यू डोंट हैव इट, फॉरगेट इट. मैं हूं ना. ओके, व्हाट इट सेज, अ स्विमर इज डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड. ये वीओ मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं है श्रीमान मैकेनिक्स का, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विच इज 2 मीटर पर सेकेंड. What will be the velocity as seen by a stationary fish
at the bottom of the pool. भाई स्विमिंग पूल में फिश है यार, कोई क्लीन नहीं कर रहे कमीने, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय द फिश, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज बोलो उसको, कितनी होगी, ब्ला 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 ब्ला, राइट बिलो द डाइवर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 और एयर का हमको पता ही है विच इज 1. नाउ बिफोर यू स्टार्ट डूइंग दिस न्यूमेरिकल, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये न्यूमेरिकल एक्चुअली कहता क्या है. You know, let me show you the diagram and you might understand. Okay, this is a fish here, this is water, this is air, and बंदा डाइव कर रहा है. He is diving from air with a speed of 2 meter per second. अब फिश यहां से देख रही है. हाँ, अगर फिश भी हवा में होती, जी नहीं पाती, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट सपोज मैं यहां हवा में खड़ा हूं और सामने से कोई दौड़ता हुआ आता है एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. मैं अगर स्टेशनरी हूं तो मुझे क्या लगेगा, कितनी स्पीड पे दौड़ के आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड. अग्रीएबल? बिकॉज ही एंड मी आर इन द सेम मीडियम एंड एज ए रिजल्ट आई एम स्टेशनरी. वो 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो मुझे यही लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड से ही आ रहा है. बट बिकॉज दिस फिश इज इन द वाटर, इट्स इन वाटर एंड बंदा इज इन एयर, तो फिश को उसकी क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, क्या वेलोसिटी महसूस होगी, वो हमको जानना है बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दैट. अच्छा, बॉडी इज मूविंग, डाइवर इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 2 मीटर. इज दैट एग्रीएबल? Because the guy is moving at 2 meter per second. So in 1 second, how much distance is that person going to cover? 2 meter. So let me say this point A is the position of the diver at time t equal to 0. बरोबर है? Point A is the position of the diver at time t equal to 0. And this B will be the position at t equal to 1 second. तो सर्वप्रथम मुझे यह बताएं, ये कितना डिस्टेंस होगा, 2 मीटर. इज दिस एब्सोल्युटली सिंपल? क्या ये बात, पहली बात क्लियर है कि t इक्वल टू 0 पे बंदा A पे था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बंदा B पे था, तो ये डिस्टेंस AB कितना होगा, 2 मीटर. उसी तरह अब ये A का इमेज जो फिश देख रही है वो करीबन कहीं यहां पे होगा, वील कॉल इट A डैश, एंड B का इमेज कहीं यहां पड़ेगा, उसको कहेंगे हम B डैश. अगर A B 2 मीटर है तो A डैश B डैश कितना होगा, ये हमको जानना है. गल्ला समझ में आई? है जी, है. ओके, A B 2 मीटर है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट स्पीड है, तो A डैश B डैश कितना होगा? वोंट इट टेल मी द स्पीड ऑफ द इमेज? यस सर, बरोबर. इफ A B is telling me the speed of the object, या distance traveled by object in 1 second, wouldn't A dash B dash be the distance traveled by the image in 1 second? है? And yes, as a result, won't it be the speed of the image? Yes sir. So that is what I want to find out. तो मैं बाकी सारी चीजों को जरा हटा देता हूं और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ही रखता हूं मैं यहां पे. ओके, ये A है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, लेट मी कॉल इट हो. तो भाई A डैश कितना होगा, वोंट इट बी इक्वल टू हाई? हाय रे हाय. ओके भाई, सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है सरकार? एयर में. डाइवर जो है वो कौन से मीडियम में है? एयर में. सो लाइन टेढ़ी है पर ठीक है. Here object is in air, मतलब कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम. एंड एज ए रिजल्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, हाई बाय हो का इक्वेशन क्या होगा जी? सो माय गॉड somebody is, किसी ने मस्त चाय वाय पी लिया, नाश्ता वास्ता कर लिया, टकाटक फुल अटेंशन. सो फॉर पॉइंट ए, हाई बाय हो is as she rightly says n denser over n rarer. भाई डेंसर मतलब कौन सा मीडियम है? वाटर. एंड वाटर और रेयर कौन सा? एयर. वाह 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 जी.
सो हाउ मच इज हाई? एन एयर का तो 1 है, एन वाटर कितना है भाई? यहां लिखा है 1.33। यार कमाल करते हो आप लोगों भी। अच्छा, इसको सिर्फ एन रखता हूं फिलहाल यार, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं अभी या बाद में करेंगे? ठीक है ठीक है, एंड में करता हूं मैं, एंड में, ताकि एटलीस्ट का एक बेसिक इक्वेशन मिल जाए, फिर अपने सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हाई इज हो इनटू एन वाटर बाय एन एयर, एंड में डाल दूंगा जो भी डालना है। दिस इज द आइडिया फॉर पॉइंट ए। अब आया ब्लू कलर में पॉइंट बी, ब्लू ब्लू ब्लू, एंड ये है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। लेट मी कॉल दिस हो डैश, अरे लेट मी कॉल दिस हो डैश, जिसका इमेज कहीं यहां पड़ेगा, I'll call it B dash, and this is how much? This is high dash. So for point B, same to same, कोई चेंज नहीं, वही फंडा है। High dash by ho dash is n denser by n rarer, which is n water by n air. So, by ladies and gentlemen, how much is high dash? Isn't it ho dash and water bar n air? And ladies, before I forget, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था उसने 1 सेकेंड में? 2 मीटर। तो यहां से इस डायग्राम से कैन आई से हो इज हो डैश प्लस 2? कैन आई से दैट? Yes, sir. थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी से दैट। नाउ अब क्या करना है? सबसे पहली बात, हो माइनस हो डैश इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, सो आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन हाई माइनस हाई डैश, which will be the distance traveled by the image in 1 second. So high minus high dash, let us rock and roll. Subtract, किसमें से किसको करना है? High minus high dash. Subtract 2 from 1. So high minus high dash. मेरे पास सारे इक्वेशंस रेडी हैं। डू यू अग्री? एन वाटर बाय एन एयर को मैं कॉमन ले सकता हूं और अंदर क्या आएगा? हो माइनस हो डैश। अरे बाबा, बट हो माइनस हो डैश, बट सो इफ हो माइनस हो डैश इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, देन मतलब ऑब्जेक्ट स्पीड, then high minus high dash is distance traveled by image in 1 second, that is speed of image. ये लिखा पढ़ी पहली बार करनी पड़ती है सब। So high minus high dash is vi, speed of image is n water by n air into vo। भाई अब सब्स्टिट्यूशन लगा दो फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो भाई एन वाटर बाय एन एयर वैल्यू कितनी है? 1.33, ये 1 है, और वीओ कितना है? 2। तो अपने इतनी गंदी जगह पे नहीं लिखेंगे, कौन जगह ही नहीं है सर, अच्छा यहीं लिख देते हैं। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज? 2.66 मीटर पर सेकेंड। इतना नीचे नजर आ रहा है आपको? है ना, नजर आ रहा? तो आंसर तो आ गया, वो तो ठीक बात है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन वन मीडियम, rarer medium let us say, and is being viewed from the denser medium, then if the speed of object is VO, then the speed of image will be n denser by n rarer into VO. This, ladies and gentlemen, is a very important idea. तो ये उसकी 2 मीटर पर सेकेंड थी, 2 इंटू 1.33 लगा दिया 2.66, मतलब फिश को क्या लगेगा बंदा कितनी स्पीड पे डाइव कर रहा है? बंदा ओरिजिनली डाइव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड पे, बट बिकॉज फिश इज वॉचिंग फ्रॉम अ डिफरेंट मीडियम, इट विल फील दैट द पर्सन इज डाइविंग with a speed of 2.66 meter per second. Check it out. Okay,
तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूं। आई एम लुकिंग एट SP8 राइट नाउ, अरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक का SP8। अगर आपके पास अरिहंत है तो आप उसको खोल सकते हैं। काफी सस्ता सा सम है, मतलब सस्ता सम नहीं है, अच्छा सा सम है, जिसमें बहुत सारे मीडियम दिखाई दे रहे हैं। ये एयर है, ये कुछ दूसरा मीडियम है, ऑयल 1, ऑयल 2, गिलास। ये बहुत सारे मीडियम को देख के हो सकता है आप थोड़े से बौखलाउट है, बट घबराने का दरकार नहीं है कोई, क्योंकि जब तक आई एम हियर नथिंग टू फियर। ओके, तो ये पहला रे आ रहा है, आने दो। कितने एंगल पे आ रही है? 30 डिग्री पे आ रही है एयर में से। फिर बेंडिंग मार रहा है, फिर यहां पे एक और बेंडिंग, फिर यहां पे एक ठो और बेंडिंग। जिंदगी में बेंड करते करते यहां तक पहुंचा है वो। और ये वाटर है गिलास में से भी बाहर आके वाटर में आया है। एक ठो नहीं, दो ठो नहीं, तीन ठो नहीं, पूरे 4 ठो मीडियम है। अरे बाप रे बाप। ओके, so let me tell you what the sum is. Light is incident from air on oil at an angle of 30 degree. After moving through oil 1, oil 2 and glass, it enters water. If the refractive indices of glass in water Ng is 1.5 and in water is 1.3 respectively, find the angle with the ray makes with the normal in water. R find करना। You know, naturally you will try to use Snell's law कि पहले एयर और ऑयल का स्नेल्स लॉ लगाओ, फिर ऑयल और ऑयल 2, ऑयल 1 और ऑयल 2 का लगाओ, ऑयल 2 और ग्लास का लगाओ, और फिर ग्लास और वाटर का लगाओ। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मैं बताता हूं आपको कि चाहे वो एंटर एयर में हुआ है, फिर 3 मीडियम अलग करके वाटर में आया है, पर जैसे आप इसका 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 और इसका इसका स्नेल्स लॉ लगाओगे तो टक 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 ये तीनों बीच में से गायब हो जाएंगे। सो फाइनली स्नेल्स लॉ आपको एंट्री मीडियम और एग्जिट मीडियम का ही लगाना है। सिंपल। तो आपको बीच के चाहे जितने भी मीडियम हो, आपको कोई स्ट्रेस लेना नहीं है उसका। आपको सिर्फ एंट्री मीडियम कौन सा और एग्जिट मीडियम कौन सा, वही इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो मैं आपको करके दिखा सकता हूं कि जैसे आई डिराइव इट फॉर यू। ये R1 बोलो, ये भी R1 ही बोलो, ये R2 बोलो, बिकॉज यू नो ऑल्टरनेट एंगल्स है। ये R2 बोलो, ये R3 बोलो, ये R3 बोलो। ओके, तो एज आई सेड मैंने यहां पे R1 लिया है, ये R1 हो गया, R2 लिया, ये R2 हो गया, R3 लिया, ये R3 हो गया। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हमको सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग का मीडियम ही लेना है, बीच के चाहे जो भी है वो सब कट जाएंगे। क्योंकि अब मैं फटाफट लूंगा एयर टू ऑयल 1, आई एम जस्ट वांटिंग टू प्रूव इट टू यू, नथिंग एल्स। तो एन एयर, you know, I'm using Snell's law, n1 sin theta 1 is n2 sin theta 2. So n air sin 30 is NO1 sin R1, equation 1. अब oil 1 to oil 2, कोई म्यूट नहीं है शायद। So NO1 sin R1 is NO2 sin R2. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फिर ऑयल 2 टू ग्लास, ये आपके लिए सिर्फ डिराइव करके बता रहा हूं मैं। ऑयल 2 टू ग्लास, तो NO2 sin R2 is N ग्लास sin R3। एंड फाइनली ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, एंड ग्लास टू वाटर N glass sin R3 is N water sin R। ये R इधर है कि उधर है? ये फाइनली मिक्स विद द नॉर्मल ना, तो चचा नॉर्मल तो ये है। हाँ तुम भी कमाल करते हो। अच्छा ध्यान से देखो, NA sin 30 is NO1 sin R1।
भाई NO1 sin R1 is actually NO2 sin R2. NO2 sin R2 is actually Ng sin R3 and Ng sin R3 is NW sin R. तो अगर मैं 1, 2, 3 और 4 को देखूं तो डू यू एग्री? बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. तो फाइनली 1 is equal to 4. Simple as that. So equating 1, 2, 3 and 4, हमको क्या मिलेगा? सुकून. Na sin 30 is NW sin R. जैसा कि मैंने कहा था, बीच के सारे मीडियम जैसे कि हैं ही नहीं, वो चले जाएंगे सारे, और फर्स्ट एंट्री मीडियम और एग्जिट मीडियम ही आपको कंसिडर करना है. सो मेरा आंसर अब आने ही वाला है. Na 1 है, sin 30 is half, I'm sure you know, and water 1.3 and this is sin R. तो ये 1.3 नीचे लिया मैं, so sin R is 1 by 2 into 1.3, isn't it 1 by 2.6. so अगर R चाहते हो, किस फॉर्मेट में चाहते हो लोग? अच्छा, साइन इनवर्स के फॉर्मेट में ही चाहता है. एंड R इज साइन इनवर्स 1 by 2.6. Is this absolutely agreeable? So this becomes the most important idea. Entry medium, exit medium, बाकी कुछ भी हो बीच में, we are not concerned. Okay? So this is how we do it. देख, मैं आगे बढ़ता हूं और मैं एक बहुत ही सुंदर न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं. SP13 मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके दिमाग के तंतु हिला देगा. ओके, आई थिंक आई कैन टेक दिस नाउ. SP13 ऑन द डेक नाउ. उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ रहा है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ रहा है. भाई SP13 जो मैं करने जा रहा हूं ना, प्लीज बहुत ही शांति से समझने की कोशिश करना. डायग्राम भी बहुत बढ़िया है. ये एक ठो पानी का एक्वेरियम है, पानी की टैंक है, और इसमें फिश है. ये हर जगह फिश आ जाती है. सो दिस इज द फिश एंड यहां पे बाहर हवा में एक फ्लाई है. मक्खी, मक्खन चंद. अ फिश इन एन एक्वेरियम. अच्छा, सीन सपाटा ये है. अ फिश इन एन एक्वेरियम अप्रोचेस द लेफ्ट वॉल. ये इस तरफ जा रही है with a speed of 3 meter per second. So velocity of fish towards the left is 3 meter per second to the left. And observes a fly. अभी fish को fly दिख रही है, approaching it at 8 meter per second. People, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, फिश भी मूव कर रही है, फ्लाई भी मूव कर रही है, एंड फिश को फ्लाई कमिंग टूवर्ड्स इट एट 8 मीटर पर सेकेंड नजर आ रही है. सो ऑन अ वेरी बेसिक आइडिया, isn't this the velocity of the fly with respect to the fish? Tell me, isn't that it? Yes. So fly is moving at 8 meter per second with respect to the fish. Gentlemen, so this is velocity of fly with respect to fish, which is 8 meter per second. Okay, and the refractive index of water, pani is 1 point, नहीं क्या, 4.4 by 3, absolutely same. And find the absolute velocity of the fly. We fly absolute, actual बोलते हैं इसको, V actual of the fly. ओके, कोई अनम्यूट है? वापिस जिंदगियां अनम्यूट में निकल गई. भाई इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको सम क्या कह रहा है वो समझ में आया? फिश यों जा रही है, फ्लाई यों आ रही है. फिश इज नॉट स्टेशनरी. इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल? फिश स्टेशनरी नहीं है, फिश भी मूव कर रही है. फिश मूविंग, फ्लाई मूविंग. फिश मूव करते करते ये देख रही है कि फ्लाई की स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड. दिस 8 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द फिश. नाउ मैकेनिक्स में हमने देखा था
relative velocity of A with respect to B. VAB is what? Do you still remember? Tell me you do. Do you? इसकी याद आती है कभी? सपने में आके सताती है? VAB is VA minus VB. So, इसी आइडिया से what is velocity of fly with respect to fish? Isn't it V fly minus V fish? Tell me it ain't so. Is this true? Can this equation work? Yes, absolutely it can work. Why not? सही है? Okay. भाई velocity of fly with respect to fish कितना है? 8. This is velocity of fly minus. भाई what is velocity of fish? 3 है ना? $1,000,000. अगर इस तरफ की दिशा को हम पॉजिटिव लिए हैं, ये पॉजिटिव लिया है वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, तो इस तरफ की दिशा को हमको नेगेटिव लेना मांगता ही है. Isn't that absolutely agreeable? तो ये V fish जो है वो 3 है, बट टू द लेफ्ट है, तो दिस इज गोइंग टू बी -3. सो टू मेक एन इजी थिंग सुपर इजी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, या +3 को इधर लेके आओ, तो हाउ मच इज वी फ्लाई? एक्चुअली वी डोंट फ्लाई, इज 5 मीटर पर सेकेंड. तुम बोलोगे ये आंसर आ गया सर. सॉरी मुन्ना, sorry to burst your bubble, but don't you see here that fish is in a different medium and fly is in a different medium? Isn't it? जैसे तुम्हारा डाइवर एयर में से कूद रहा था और फिश खड़ी खड़ी देख रही थी, आओ डाइवर आओ, हमारी गंदगी देखो पूल की. तब क्या फॉर्मूला था, वो कितनी स्पीड पे इमेज नजर आ रही है? Wasn't it n water by n air into velocity of the object? Yes, yes. हाँ ना. This is the speed of the fly as seen by the fish. This is the speed of the image of the fly. Oh, अच्छा. So we have, हमेशा हमारे पास होता ही है, we image. Isn't it n water by n air times v object? है जी सरकार. तो velocity of fly is n water by n air times velocity actual of the fly. ये actual velocity है, absolute velocity है उसकी. तो सर क्या करें? अरे क्या करें मतलब लगा दो यार, अब क्या जान लोगे. ये 5, वाटर का कितना है सरकार? 4/3, एंड एयर का तो 1 ही है. क्या आप में से कोई इस आंसर को ला के मुझे बता सके है? 5 3s are 15, 15/4, 15/5 3 होता है, 3 point something 4 के आसपास होना चाहिए. 3.755. उन्हें चेक करें क्या आंसर है. मैं चेक कर लेता हूं. So actual velocity of the fly comes out to be 3.75. Is that the answer? Yes, it is, sir जी. True. Absolutely true. आपने देखा 1 2 3 डेटा दिए और 3 डेटा में से धमाधमी मचाई हमने. कोई शक इसमें? One of the best sums today. कोई शक? No शक? Shall we go on? अच्छा, मैं फाटाफाटी lateral shift ले लेता हूं, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड लेट्स सी हाउ मच ग्राउंड वी कैन कवर. तो ये बहुत बढ़िया सम था सरकार, जरा ध्यान से देखना यार, मजा आ जाएगा. ओके, सो सबसे पहले लैटरल शिफ्ट. यू ऑलरेडी नो द आइडिया. मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, एंड दिस ग्लास स्लैब हैज अ थिकनेस T, and you know this ray of light is incident. If the glass would not have been there, this ray of light would have gone straight
let me draw a good ray of light. This ray of light would have gone absolutely straight, but because ray of ये slab आ गया sorry, इसमें bending हुआ, फटाक, first bending, first refraction, and thadaak, second refraction, and you can see it emerges parallel to the original ray. Let us call this theta 1, let us call this theta 2, this is again theta 2, alternate angles, and this again theta 1. But the displacement that has occurred this much, that is called lateral shift. It's denoted as x. We would like to find an equation for x. This is in air, this is in glass, yeah, whatever, and here x is lateral shift. So lateral shift जो define किया जाता है, it is like this, that the perpendicular distance by which the original ray of light shifts while emerging parallel to the original ray is called lateral shift. And lateral shift का equation मैंने शायद आपको दिया था, x is equal to t sin theta 1 minus theta 2 over cos theta 2. X is equal to t sin theta 1 minus theta 2 by cos theta 2. And supposedly, if theta 1 and theta 2 are small, then sin theta 1 minus theta 2 will be nearly equal to theta 1 minus theta 2. You know, let sin theta nearly equal to theta. And cos theta 2, भाई theta 2 की minimum value अगर 0 भी पकड़ी जाए तो how much is cos 0? 1. So ऊपर sin theta 2 theta 1 minus theta 2 बन गया करीबन theta 1 minus theta 2, and नीचे cos theta 2 बन गया 1. So your lateral shift becomes x nearly equal to t theta 1 minus theta 2 over 1. So which is nearly t. ए यहां से theta 1 को बाहर ले लूं, चल आजा, 1 minus theta 2 by theta 1. अच्छा, also by Snell's law, स्नेल भैया बैठे ही हैं, n1 sin theta 1, n1 बोलो, इसको n2 बोलो, आपको जो बोलना है बोलो. n1 sin theta 1 is n2 sin theta 2. एंड अगर तुम्हारे थीटा 1 थीटा 2 दोनों छोटे छोटे हैं तो isn't n1 theta 1 nearly equal to n2 theta 2? मुझे चाहिए theta 2 by theta 1. So what am I gonna get, people? Theta 2 by theta 1, how much? theta 1 को यहां नीचे उतारो, n1 by n2 कर दो, तो इसको पुट करो इसमें, 10 लैटरल शिफ्ट. ये तभी यूज करने की जरूरत पड़ती है जब थीटा 1 थीटा 2 दोनों काफी छोटे होते हैं. सो व्हाट डू आई गेट? x इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू t इंटू थीटा 1 1 माइनस हाउ मच इज थीटा 2 बाई थीटा 1 n1 by n2. wow, but you will not get to use this more often. I have never gotten to use this. I will always get to use this. एंड इसको यूज करने का एक जरिया फिलहाल पेश हुआ है मेरे सामने. आप ये फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला कहीं जॉट डाउन कर दो, मैं आगे बढ़ता हूं. लैटरल शिफ्ट का एक सम कर रहा हूं, मैं लैटरल शिफ्ट का सम कर रहा हूं वर्कशीट में से. वर्कशीट का नंबर 7 मेरे हाथ में है, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ नाउ. ओके, लैटरल शिफ्ट. ओके, अच्छा, वर्कशीट का नंबर क्या बोला मैं? 7. I should have kept the diagram. A narrow beam of light is incident at 53-degree angle. So theta 1 is 53 and made with the normal on a glass plate of refractive index 1.6. Okay. If the thickness of the plate is 20 mm, calculate the lateral shift of the beam. X find करना है. When it emerges out of the plane, they have given me sin 53 is 0.8. I love sin 53 whenever it comes. So first things first, ये ऐसा ही है, same old.
और यहां से बाहर निकला, दिस इज योर x मतलब दिस इज x, दिस इज n air, this is n glass. Formula for lateral shift is easy. It says x is equal to t sin theta 1 minus theta 2 over cos theta 2. Now they have given me theta 1 53 degree, they haven't given me theta 2, so theta 2 I will find using Snell's law. So by Snell's law, क्योंकि थीटा 2 मिलने पे ही काम आगे बढ़ेगा, na sin theta 1 is n glass sin theta 2. So I am ready. Na is 1. Please, can I have some silence? Thank you, buddy. Sin 53. That's Dipansh out there. उसको ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है यार, ये चलता रहता है. आओ, दिवाली आ गई है उसकी तो फटाकड़े फोड़ रहा है, फुग्गे फोड़ रहा है राधर. Sin 53 कितना है जी? 0.8. कहाँ गया? नहीं है ही नहीं. 0.8 और 1.6 को नीचे ले आते हैं भाई. हाउ मच इज 0.8 by 1.6? Isn't it 0.5? एंड sin थीटा 2 किसका साइन इनवर्स 0.5 होता है भाई? आप लोग ज्यादा सोचे मत. 30 डिग्री. ओके, मुझे मिल गया 30 डिग्री. और अब लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला लगेगा जी, लगेगा. लैटरल शिफ्ट इज, पहले फॉर्मूला sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओवर cos थीटा 2. पहले फॉर्मूला डाला और अब वैल्यू डाल के धीमी आंच पे पका डाला. sin थीटा 1 कितना? 53 माइनस 30 ओवर खास थीटा 2 कितना है? 30. नाउ sin 53 माइनस 30 कितना हो गया जी? sin 23 एंड cos 30. भाई वैल्यूज तो आई थिंक हमको अच्छी तरह पता ही है. मुझे sin 23 की वैल्यू नहीं पता. sin 30 इज 0.5, sin 23 करीबन 0.3 समथिंग. कितना होता है करीबन? sin 20 0.3420 होता है, तो 0.37 0.38 के आसपास होगा करीबन. 0.4 ले सकते हैं लेना हो तो. एंड cos 30 इज 0.866. तो 20 2 4 जा करीबन 8 बाय 0.866, मतलब करीबन 9 या 10 के आसपास होना चाहिए आंसर. अगर वर्कशीट है तो वर्कशीट से पता करीबन चल जाएगा. लेट अस सी वर्कशीट में क्या आंसर दिया हुआ है. वर्कशीट के नंबर्स, वर्कशीट के करीबन 9. यस एब्सोल्युटली सर, आंसर आ चुका है. Okay, so this is how the entire thing crumbles. I think I'll move on to total internal reflection. Check it out. Okay, ladies and gentlemen, refraction का एक बहुत important part है total internal reflection. हम इसको TIR कहते हैं. In this particular idea, light goes from denser to rarer medium. So this is the boundary separating the two media. This is the denser medium, this is the rarer medium. So the first idea, the first condition is light has to go from denser to rarer. Everyone knows when light goes from denser to rarer, it bends away from the normal. तो मैं धीरे धीरे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जाता हूं एंड एज अ रिजल्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाता है. आपको इसको आई कहना है, इसको आर कहना है, नो इश्यूज, यू कैन से एनीथिंग यू वांट. एट वन पर्टिकुलर पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा हो चुका है कि नाउ द रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट एंटर इनटू दिस मीडियम बट इट स्किम्स ओवर द सरफेस. दिस इज द स्किमिंग. सो थीटा 2 हैज बिकम 90 and the angle of incidence theta 1 is called IC, critical angle. So when theta 1 is IC बोले तो critical angle, then theta 2 will become 90. So इसको n denser कहा, इसको n rarer कहा. लगा दो अपना Snell's law. n denser sin theta 1 is n rarer
साइन थीटा 2. थीटा 1 कितना है IC, so in denser sin IC is in rarer and theta 2 is how much, 90, and sin 90 is how much, 1. So what does my critical angle formula become? So sin IC is in rarer by in denser. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एंड मैं हमेशा क्रिटिकल एंगल को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना प्रेफर करता हूं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. The reason is that, people tend to get confused. I say कि sin IC is N2 by N1. अब वो बंदा कंफ्यूज चल रहा है कि यार ये N2 by N1, ये N2 किसको लूं, N1 किसको लूं, क्या लूं. पर बेस्ट क्या है पता है, sin IC is n rarer by n denser करने से तुम्हारे सारे दुख दर्द हवा हो जाएंगे, तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा. सीधी बात है, अगर कहा है ये एयर है, ये ग्लास है, तो सीधा एन एयर बाय एन ग्लास लगा डाला एंड लाइफ इज अनडाउटेडली होल हार्टेडली जिंगा लाला. सो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मिल गया, IC इज साइन इनवर्स एन रेयर बाय एन डेंसर. ओके, ऑलराइट. फिर तुमको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं कि अच्छा इसमें से जा रहा है ना तो इसमें आ रहा है, ना सीधा एन रेयर बाय एन डेंसर लगाओ, बाकी सब भूल जाओ. ओके, सो दिस अ वेरी लवली फॉर्मूला. एंड इसके आगे हमने ये देखा था कि अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से थोड़ा सा भी बढ़ा देते हो, थोड़ा सा भी, हम कभी कभी यही मान के चलते हैं कि IC जितना ही है करीबन. सो इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC, तो फिर लाइट न इस मीडियम में जाएगी न स्किम करेगी, बट इट विल कम बैक इनटू द सेम मीडियम. दिस इज योर इंसिडेंट रे and this is your totally internally reflected ray, and but of course ये भी आपका theta 1 ही होगा, so it will obey the laws of reflection. Two conditions for total internal reflection. One, light has to go from denser to rarer medium, and second, the angle of incidence has to be greater than critical angle. Nearly greater, थोड़ा सा ही greater होगा तो भी चलेगा, तो हम इसको IC मान के चलते हैं. तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ऐसा भी कहा जाता है कि अ पर्सन इज जस्ट एबल टू सी समथिंग, या अ पर्सन इज जस्ट नॉट एबल टू सी समथिंग. तो जब भी ऐसा एबल या नॉट एबल टू सी आए, याद रखना क्रिटिकल एंगल का मामला है ये. बरोबर है, क्रिटिकल एंगल की बात हुई है, तब जाके उसको या तो वो चीज नजर आने लगी या जस्ट नजर ना आने लगी. ओके, सो याद रखना तब क्रिटिकल एंगल की ही बात हो रही है, क्रिटिकल एंगल को ही अपने को मेन मानना है, आइडिया उसका ही लेना है. सो दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंडोस्कोपी वगैरह में यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में वगैरह यूज होता है, एंड ऑप्टिकल फाइबर्स का एक सम करने जा रहा हूं अभी, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट आइडिया. डायमंड्स वगैरह का स्पार्कलिंग इसी वजह से होता है, मिराज का फॉर्मेशन भी इसी वजह से होता है. मिराज फॉर्मेशन में याद रहे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is inversely proportional to temperature. ग्राउंड के करीब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, इट बिकम्स रेयर. जैसे ऊपर जाते हो टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, T कम होने लगा, N बढ़ने लगा, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और फिर आके इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, आंख में जाता है और उस चीज की इमेज नीचे नजर आती है. वी हैव डन दिस. ओके, सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लेट्स मूव ऑन. इसमें कोई शक किसी को? नो शक? गुड टू गो? ओके. तो एक खतरनाक न्यूमेरिकल आपके लिए ले रहा हूं. इससे पहले कि मैं एक खतरनाक न्यूमेरिकल ले लूं, एक सादा न्यूमेरिकल सोच रहा हूं. पहले सादा डोसा, फिर मैसूर मसाला खाता है. ओके सर, क्या आप खाने की बात कर रहे हो सुबह सुबह? भाई आपको तो पता है ना कि आई एम ऑलवेज हंग्री, 24/7, तो ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं. ये एक बहुत अच्छा समय मैं चाहूंगा आप लोग करें. ये वर्कशीट का नंबर 24 है. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द आइडिया. मैं जैसे कह रहा था आपसे, अ फिश इज इन अ लेक एट द 6.3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द लेक. तो ये लेक है एंड इकड़े फिश है. ये फिश का बहुत झोल है. एंड व्हाट इज इट कहां गया?
if it is just able to see, did you hear? If it is just able to see a tree on the edge of the lake, in a tree, this is a tree. It is just able. भाई just able అంటే just able मतलब isn't this going to be critical angle सरकार? Do you agree? भाई agreement में है कि नहीं हम लोग? Yes, sir. So this has to be critical angle. This is going to be 90. Okay. और क्या मांगता है अपने को, किधर चला गया यार? The depth in the lake is, let us call this D and let us call this कितना कितना ये 6.3. भाई इसमें तो सिंपल है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33, एन एयर इज 1 एंड डेंसर इज 1.33. हमको डी चाहिए. कैसे करेंगे हुजूर? सबसे पहले क्रिटिकल एंगल का कोई फॉर्मूला है आपके पास? माय गॉड साइन आई सी. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा एन आर बाई एन डी. भाई मैं इसके ओरिजिनलिटी को ही लूंगा. भाई रेयर मीडियम कौन सा है? एयर. सो दिस इज एन ए. एंड डेंसर मीडियम कौन सा है? वाटर. मेरे पास एन एयर है, मेरे पास एन वाटर भी है ऑल्सो. अच्छा ये आईसी है तो डू यू अग्री ऑल्टरनेट एंगल ये भी आईसी होगा, है ना? एंड इन दिस ट्राइंगल लेट अस कॉल इट ओ ए बी. इन ट्राइंगल ओ ए बी, what is sin IC? Isn't it opposite over hypotenuse? Opposite. How much is opposite? AB. And how much is hypotenuse? OB. भाई साहब, सर हमारे पास OB नहीं है. पाइथागोरस तो है, पाइथागोरस तो है. तो AB and what is OB? Isn't it root of OA square plus AB square? OA square plus AB का स्क्वायर. AB दिया हुआ है 6.3. रूट ऑफ OA फाइंड करना है, D का स्क्वायर प्लस 6.3 का स्क्वायर. आर यू लुकिंग एट इक्वेशंस 1 and 2? बोथ आर ऑफ साइन IC. क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं और जिंदगी को रंगीन बना सकता हूं? या कह दो नहीं कर सकते हो सर आप? मेरे को बता दो एक बार तो मुंह खोल के कह ही दो आज. लो मुंह ना खोल रहा है कोई, ना कुछ बोल रहा है कोई. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और डी मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास Na भी है, एन वाटर भी है. कितना है Na? 1. कितना है एन वाटर? 1.33. Do you agree squaring both sides will give me D? You think you can find me D? You think you can do that? Yes, sir. Very good. The yes sir was not as enthusiastic, but I'll settle for that. Okay, so you can find me the answer of D and we can do the honors. इसको उड़ा देता हूं मैं. ओके ओके. और अब आ रहा है खतरनाक सम सरकार. खतरनाक. खतर भी है, नाक भी है. ओके ये है सम एक्चुअली राउंड 2 का 26. मैंने इस बार काफी मिक्स एंड मैच किया है, अलग अलग वैरायटी आपके लिए लाया है. वेज कोल्हापुरी भी लाया है, साथ में एंचिलाडास भी लिया है मैंने, और थोड़ा सा सिजवान सॉस डाल के राइस को भी बनाने की कोशिश की है. तो इस चीज को मिक्स एंड मैच करके देखें आप. ओके पहले डायग्राम, सर्वप्रथम डायग्रामम. Oh God, something happened? What happened? Happened what? अच्छा हमारे पास 5 मिनट है. ओके भाई ध्यान रखी. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है
नाम है उसका ए बी सी और डी। ओके, एंड क्या कहता है हमसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, n1 बोलो μ1 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये वाटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये पूरा स्लैब वाटर में, μ1 greater than μ2. Okay, so this is like this is denser, this is rarer. A ray of light is incident at the surface AB of the slab is shown. They have not shown, they have shown. Okay, ये आपका AB सरफेस है, उस पे ऊपर करके लाइट इंसिडेंट हुआ, कितना एंगल बोलता है ये अल्फा मैक्स. ओके, I shown the maximum value of the angle of incidence alpha max such that the ray comes out only from other surface CD. अच्छा, मतलब रे इधर से बाहर आनी चाहिए. ओके, कैसे आएगी? पहले तो यहां से यों करके, भाई इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो रेयर टू डेंसर बेंडिंग कैसा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेट अस से दिस, और यहां पे कुछ ऐसा होना चाहिए. तुम बोलोगे सर यहां से तो बाहर नहीं आ जानी चाहिए, भाई आनी तो चाहिए, पर यहां कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये ऐसी बेंड होके फाइनली यहां से बाहर आ रही. तो यहां पे ऐसा क्या हो जाना चाहिए जिससे वो बाहर आएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यस सर. अच्छा, तो यहां एट पॉइंट लेट अस से ई, सो फॉर रे टू कम आउट फ्रॉम CD, TIR has to occur at surface, केड़ा सरफेस है? BC. ओके सरकार. अच्छा, सबसे पहले नामकरण कर देते हैं जी. लेट अस कॉल दिस R1, लेट अस कॉल दिस R2. ओके, एंड उन्होंने मुझसे क्या मांगा है? मुझसे मांगा है अल्फा मैक्स. ओके, इन टर्म्स ऑफ μ1 एंड μ2 एंड न जाने क्या क्या. सो अल्फा मैक्स चाहिए उनको. ओके, सबसे पहले ऑन सरफेस AB, स्नेल्स लॉ टू AB. Let us cut a long story short. सेल्स जो लगाए n1 sin θ1 is n2 sin θ2, तो ये μ2 है, तो μ2 sin अल्फा मैक्स. मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, चलेगा ना? n1 sin θ1 is n2 sin θ2, चलेगा? सो μ2 sin अल्फा मैक्स is μ1 sin R1. ओके, तो भाई R1 कितना हो जाएगा, या अल्फा मैक्स साइन अल्फा मैक्स कितना हो जाएगा? जगह मैं μ2 को नीचे उतार रहा हूं, μ1 बाय μ2 साइन R1. अब जब मैं ऑप्शंस में नजर मारता हूं ना, तो R1 नहीं है, μ1 μ2 cos 20 कुछ है. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे और आगे बढ़ना है. सो अब इस ट्राइंगल को देखो. Let me call this triangle E, F and G. In triangle FEG, FEG, do you agree R1 plus R2 plus 90 is 180, so R1 plus R2 has to be equal to 90. And for TIR at point E, भाई R2 कितना होना चाहिए? Shouldn't it be equal to critical angle? है ना? R2 has to be equal to IC. Do you see, gentlemen? आपको यह अंदाजा आया कि R2 90 होना चाहिए, R2 IC होना चाहिए, तभी जाके इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो भाई क्या हुआ, जानवर निकल गई क्या सबकी? कोनो आवाज ही ना आ रहा. आईसी का कोई इक्वेशन हासिल है आपको? आईसी? हाँ, तो बताओ फिर हमको. हमारे पास आईसी का इक्वेशन नहीं है. हाँ, यस, साइन इनवर्स. वाह वाह वाह. और यहाँ रेरर कौन सा है? μ2. डेंसर कौन सा है? μ1. d1 क्या है? तो साइन इनवर्स रेरर कितना है जी? रेरर μ2 बाय μ1.
एकदम सस्ता भाड़ा चल रहा है, तो आईसी की जगह पे ये डाल देता हूं, तो मुझे R1 कितना मिलेगा, 90 डिग्री माइनस करके आईसी इज हाउ मच। मैं जानता हूं थोड़ा सा डेंजरस होने लगा है, पर एक ही काम है, चलते जाओ, आगे चलते जाओ, देखें कहां पहुंचता है। और ये R1 को उठा करके मैं लगा दूंगा 1 में, सो पुट 3 in 1, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। क्योंकि जब तक कुछ आएगा नहीं तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि सही आया नहीं आया। μ1 बाय μ2 साइन R1, अब ये R1 है, ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगाता हूं मैं, 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स। आई थिंक एवरीबॉडी नोज साइन 90 माइनस थीटा इज हाउ मच, cos थीटा, cos sine of 90 minus something, cos something. Is that an agreeable option? मैं इसको उड़ा रहा हूं भाई, हाँ या ना भाई। तो एज आई वाज सेइंग, R1 की जगह 90 माइनस दिस मैंने डाल दिया, एंड साइन 90 माइनस थीटा, एंड बट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इजंट इट cos थीटा, तो दिस बिकम्स cos। तो मेरा इक्वेशन क्या मिला, देयरफॉर साइन अल्फा मैक्स, कुछ बड़ा सा भूचाल आया, इनक्रेडिबल हल्क जैसा, और ये हो गया cos, और फिर आया साइन इनवर्स μ2 बाय μ1। एक एक बात को मुझे सही से देख करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। क्या आपकी बुक्स खुली हुई है, अरिहंत खुली हुई है? अगर ऑप्शन ए, अब मेरे पास तो देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ऑप्शन ए है क्या, साइन इनवर्स μ1 बाई μ2 cos साइन इनवर्स μ2 बाई μ1। यस, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, सही है, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको उड़ा करके मैं 2 मिनट लूंगा और एक और सम का आगाज आपको करा दूं, विच यू कैन डू एट होम। मैं एक आध 2 सम के आपको हिंट दिया हूं, तो आप उसको घर पे कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, घर पे करना जरूरी है, क्योंकि आप करेंगे नहीं तो होगा नहीं, और होगा नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हमसे होता भी है या नहीं। सो इन ऑल सेंस यू हैव टू कीप इट प्रॉपर। कोई और सम जो मैं कराना चाह रहा हूं, ये बहुत मस्त है, राउंड 2 का 29, आप कर सकते हैं अच्छी तरह, मैं आपको हिंट ही देने वाला हूं इसका। सो इट्स लाइक दिस, अ 4 सेंटीमीटर थिक लेयर, ये कॉइन है यहां पे, एंड यहां पे दिस इज लाइक ग्लास, कितने सेंटीमीटर थिक ग्लास है, 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज वाटर, एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, covers a 6 centimeter glass slab. A coin is placed at the bottom of the slab, is being observed from air side along the normal to the surface. Find the apparent position of the coin from the top. Simple as that. अब आप देखो, आपको apparent shift 2 जगह से होगी, पहला तो water से, फिर glass से। तो simple as that. For water, shift is, मतलब कितना ऊपर नजर आएगा। क्या आपको shift का इक्वेशन याद है? डेल्टा एच इज HO 1 माइनस, याद है किसी को भाई? इस बार कॉइन कौन से मीडियम, इस बार कॉइन कौन से मीडियम में है, डेंसर में है ना? इज दिस एग्रीएबल? तो हाई विल बी लेस देन हो, एंड इफ हाई इज लेस देन हो, तो हाउ मच इज हाई? Isn't it ho into high by ho equal to n rarer by n denser? Thank you. तो वाटर के लिए
ये हो वाटर HOW, ये वाटर के लिए W लगा रहा हूं, इसको डेल्टा HW लगाता हूं। 1 माइनस रेयर कितना है 1, और ये N वाटर ले लो। उसी तरह ग्लास का फाइंड करो, और ग्लास का जब लो तो वाटर को कंसीडर मत करना। फॉर गिलास डेल्टा H गिलास इज हो गिलास 1 माइनस N रेयर कितना 1 अपॉन N गिलास। HOW कितना है वाटर का, कितना है 4, यहां 4 लगाओ। N वाटर का कितना है भाई, N वाटर का तो आपको पता ही है ना 4/3, एंड N ग्लास का पता ही है आपको 1.5, वो यहां लगाओ। एंड HO ग्लास कितना है 6। डू यू अग्री? टोटल शिफ्ट is delta H water plus delta H glass. You think you can handle this? You think so? Yes. Handleable? Okay. And एक और सम का तुमको वो दे देता हूं, क्या बोलते हैं उसको, आइडिया, ताकि आप कर सको उसको। मैंने ये कर दिया। मैं वर्कशीट का नंबर 6 देख रहा हूं, फटाफट देख लेता हूं। इसको देख लिया ना आपने? अच्छा, मस्त एकदम। ओके, मैं चाहता हूं आप उसको सॉल्व करें। इट विल टेक मी 1 मिनट टू गिव यू द आइडिया एंड यू कैन डू इट एट होम। वर्कशीट का नंबर व्हाट इज इट 7-6, एंड यहां पे एक स्लैब दिया हुआ है, एंड ये लाइन टेढ़ी कर दी है उन्होंने। अच्छा, गंदी लाइन। एंड यहां से एक रे जा रही है, एंड बीइंग एंटरिंग एट 30 डिग्री। भाई लैटरल शिफ्ट वाला नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज NY इज 1.5 माइनस KY। ओके, जहां पे K दिया हुआ है 0.25। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एंड दिस लाइन इज Y इज इक्वल टू 0। ओके, फाइंड आउट कहां गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Y विल द रे बिकम हॉरिजॉन्टल। सर हॉरिजॉन्टल बोले तो आप देखें ये धीरे धीरे बेंड होगी, क्योंकि इसका ये कांस्टेंट नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज चेंजिंग विथ Y। तो यहां पे कहीं जाके रे ऐसी हो जाएगी, एंड हॉरिजॉन्टल हो जाना मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाना 90। लेट अस से दिस हैपेंस एट Y। ओके, लेट मी कॉल दिस पॉइंट A, लेट मी कॉल दिस पॉइंट B। ये टेबल नहीं है बाबा, ये नॉर्मल है और ये 90 है। सो एट पॉइंट A Y कितना है 0। सो हाउ मच इज योर N1? मैं ऊपर चला जाता हूं, मतलब इतना ऊपर नहीं है, नहीं तो तुम बोलोगे हाँ ऊपर चला जा रहा है। 1.5 माइनस K इंटू Y कितना है 0। भाई K इंटू 0 इज 0, तो N1 कितना हुआ 1.5। अच्छा, θ1 कितना है 30 डिग्री, θ2 कितना है 90 डिग्री। क्या आपको N1 sin θ1 इज, क्या आपको N1 sin θ1 इज N2 sin θ2 से N2 मिल जाएगा? तो फाइंड N2 एंड देन N2, ये इक्वेशन ये रहा 1.5 माइनस KY, जो भी वैल्यू N2 का है वो लगा के, K को 0.25 लगा के, क्या आप Y की वैल्यू मेरे लिए फाइंड कर सकते हैं? यू थिंक यू कैन हैंडल दिस? हो पाएगा? इज दैट अ यस सर और इज दैट अ यस सर? इज दैट अ यस सर? ओके, तो मैं चाहूंगा आप ये सम करें घर पे, और मैं वीडियो के बाद होमवर्क भी लगा देता हूं, वर्कशीट के भी सम्स होंगे इसमें। सो आज हमने रिफ्रैक्शन किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया। अनफॉर्चुनेटली रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस नहीं हो पाया, बट वील डू इट नेक्स्ट टाइम अलॉन्ग विद लेंसेज। सो नेक्स्ट लेक्चर में वील डू दो स्टफ। तब तक आप इसको कंप्लीट करें एज ऑफ दिस वीक। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।